شروع کرتا ہوں یشوع ہا مسیح کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ اور آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آج کا پیغام ہے، وہ ہے 666، کیونکہ بہت سارے لوگ 666 کے تعلق سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ تشبیہاتی پیغام ہے۔ اصل میں علم الواعظ کا جو طریقہ ہے، اس میں 21 طرح کے واعظ ہیں، جس میں تشریحی واعظ ہے، آیتی واعظ ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ماسٹر کمیشن مبارک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کو لازمی طور پر سکھاتے ہیں تاکہ انہیں بائبل ایسے ہاتھ میں پکڑ کر وہ نہ چلیں، بلکہ بائبل کے بارے میں جو سچائیاں ہیں، جو بائبل کی جو گہرائیاں ہیں، وہ جان سکیں۔ تو ان فیوچر ایسا ہوگا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ماسٹر کمیشن مبارک یونیورسٹی میں داخلہ لے، تو یہ ماسٹر کمیشن بائبل یونیورسٹی جو ہے، یہ یورپ میں بھی کام کر رہی ہے، اور اسرائیل میں بھی، اور مڈل ایسٹ میں بھی۔ تو یہ واحد ایسا ذریعہ ہے کہ آپ اردو میں کلام سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو ڈگری، ڈپلومہ، سرٹیفکیٹ جو ہے وہ یورپ کے لیول کا مل سکتا ہے، کیونکہ ہمارے بہن بھائی یورپ میں آ نہیں سکتے، اتنا پیسہ دے نہیں سکتے، پھر ویزے کی بڑی پرابلم ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے واسطے یہ خاص طور پر آسانیاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ ان تک کلام پہنچ جائے۔ آپ میرے ساتھ خداوند کے کلام کو کھولیں کہ جو 666 کے تعلق سے ہے، اس کو بڑی تسلی کے ساتھ آپ میرے ساتھ تلاوت کریں، پڑھیں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 13واں باب، اور اس کی آیت ہے 11ویں سے شروع کر کے، تو میں پڑھوں گا 18ویں آیت تک، لیکن بخوبی اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ مکاشفہ کی کتاب، اس کا پورا جو 13واں باب ہے، وہ اگر پڑھیں تو آپ کو اس کی ساری سمجھ آ جائے گی، لیکن میں صرف 11ویں آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برا کے سے 2 سینگ تھے، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا، جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، تاکہ وہ حیوان کا بت بولے، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش کریں ان کو قتل بھی کرے، جتنے اس کے بت کو سجدہ نہ کریں وہ اسے قتل بھی کرے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں اور دولت مندوں، غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دائنے ہاتھ پر ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان، یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے،
اور اس کا عدد 666 ہے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ یہاں پر جو پڑھا گیا ہے اس میں ایک حیوان کی بات ہے، جبکہ دو حیوان ہیں۔ جو 13ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک حیوان ہے جس کے 10 سینگ ہیں۔ اصل میں یہ جو تشبیہاتی پیغام ہوتے ہیں ان کو بڑے احتیاط سے سمجھنا چاہیے اور جلد بازی سے اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو 10، میں مکاشفہ کی کوئی تفسیر لکھنے نہیں بیٹھا اور نہ میں تفسیر کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے روحانی طور پر سمجھیں۔ یہ جو دو حیوان ہیں، یہ ایک حیوان ہے جو یورپ کی بات ہے، 10 بادشاہ ہیں۔ یہ دانیل کی کتاب میں وہ بادشاہوں کے تعلق سے بات ہے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب اور دانیل کی کتاب کو ہم برابر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسرا حیوان جو ہے وہ 11ویں آیت میں ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ زمین میں سے نکلنے کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ زمین سے، میں یہ اس کو اس طرح کہتا ہوں، میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں لکھا ہے، میں نے لکھا ہے کہ میں نے حیوان دیکھا جو زمین یعنی دنیا سے ابھرا یا نکلا، نمایاں ہوا، لیڈر ظاہر ہوا، اور پھر اس کے بعد ہے کہ برہ دیکھا، اس کے برے کے سے 2 سینگ تھے، یعنی وہ عام معلوم ہو رہا تھا، وہ سادہ سا تھا اور سب کی طرح کا دکھائی دینے لگا۔ وہ مقبول تھا، جائز ہے، کیونکہ برہ جو ہے وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جائز کا مطلب ہے جیسے پاک جانوروں میں آتا ہے۔ اس کی سب تک رسائی ہے اور سب کی اس تک رسائی ہے، وہ قابل رسائی ہے، سب کی اس تک پہنچ ہے۔ پھر تیسرا ہے کہ وہ اژدہا کی طرح بولتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہے وہ برہ لیکن وہ اژدہا کی طرح بولتا ہے، یعنی بڑے بولتا ہے، گھمنڈ ہے اس کے اندر، اور اپنی کشش میں کر لینے والا ہے، اثر دکھانے والا ہے، بڑی اس کی گرفت ہے، بڑی گرفت رکھنے والا ہے، چلاک ہے، قابو کر لینے والا ہے۔ اور حیوان کا اختیار جو ہے وہ اژدہا کو دیا گیا ہے، یعنی مخالف نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے، اور وہ جو مخالف ہے وہ پرانا سانپ ہے، ابلیس ہے، اور وہ حیوان میں سما گیا ہے۔ اب وہ حیوان میں جب سما گیا تو وہی حیوان ہے، دیکھو کہ بڑی عجیب بات ہے کہ لکھا ہے کہ وہ برہ ہے اور اس میں اژدہا سما گیا ہے۔ وہ حیوان جو ہے، وہ جانور جو ہے وہ جائز ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک جانوروں میں ہے۔ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اور مسیح کو بھی تشبیہ دی گئی برے کے ساتھ۔ اب مسیح جو ہے اس کے اندر خدائے قدوس روح القدس مجسم ہوا اور وہ اس میں رہ کر کام کرتا رہا۔ اس نے ایک انسانی بدن لیا اور روح القدس اس میں رہ کر کام کرتا رہا، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب یوحنا سے بپتسمہ لیا گیا تو روح القدس اس پر نازل ہوا اور وہ روح القدس سے بھر گیا، ممور ہوا، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی ساری مموری اس میں سکونت کرتی ہے۔ روح القدس خدا کی مموری ہے اور وہ اس میں سما گیا۔ اب دوسری طرف دیکھو تو جو 2 حیوان ہیں، اور یہ ایک پہلے حیوان کا سارا اثر دوسرے حیوان میں آ گیا، جس کا مطلب ہے 2 تشبیہات ہے۔ پہلا ہے خدا اور پھر دوسرا ہے مسیح، اور جب مسیح ہے تو وہ
वो कुर्बानी का काम कर रहा है। अब इब्लीस ने भी, क्योंकि इब्लीस मुकम्मल तौर पे खुदा की कॉपी करता है, खुदा के तौर तरीके को अपने तरीके से बनाता है, और उसके अंदर लिखा है कि वो अजदहा जो है वो समा गया, उसमें चला गया, सारा इख्तियार उसके पास आ गया। अब हैवान जो है, ये इंसान, पहले देखो लिखा है बर्रा, जिसका मतलब है जायज है। जब हम इसको देखते हैं कि यही हैवान जो जिसके अंदर अजदहा समा गया, ये मतलब है अजदहा की बात है इब्लीस के साथ। जब इब्लीस किसी के अंदर आ जाता है तो वो फिर फर्क तरह की शख्सियत बन जाता है। नबूकदनेस्सर को आप देखो, बड़ा अच्छा बादशाह था। दानियल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, नबूकदनेस्सर का हाल है कि उसने इतना घमंड आ गया उसके अंदर कि उसने बड़े काम किए, और ऐसे काम किए जो खुदा की हजूरी में, खुदा के सामने बड़े भयानक और मकरूह थे, कि उसने शराब पी हैकल के बर्तनों में और समझा कि मैं ही हूं। कहां गया वो यहोवा खुदा जिनको यहूदी मानते थे? मैंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। इसका मतलब है कुछ भी नहीं था, ये सारा पखंड था। उसने और उसकी हरमों ने हैकल के बर्तनों में शराब पी, खुदा की परवाह करना छोड़ दी, और जब वो पी रहा था तो दीवार पर हाथ जाहिर हुआ, और जो लिखा गया था वो था, मिने मिने तकीलो फरसीन, तू तोला गया और कम निकला। और जब उसने हाथ देखा, योद देखा, जो हिब्रू का लफ्ज है योद, जब वो देखा तो लिखा है कि उसकी कमर के मोरे ढीले हो गए, उसके घुटने एक दूसरे के साथ टकराने लगे। एक पल में उसका घमंड टूट गया और वो इंसान से हैवान बन गया, इंसान से हैवान हो गया कि वो अब इंसान नहीं रहा। अगर हम इसको और आगे बढ़ के देखें तो यह है कि ये इंसान जो है ये खुदा की सूरत और शबीह पर बनाया गया। पैदाइश की किताब उसके 6 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो माफ करना, पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने 6ठे दिन आदम को बनाया। 6ठा दिन जो है ये इस्लामिक रवायत के मुताबिक है, और अब अगर हम गिने भी तो 6ठा दिन जो है वो इस तरह से आता है, आप गिन लें कि इस तरह से हाथ करें और गिने कि हफ्ते का दिन तो सब्बत का दिन है, आराम का दिन है, और फिर आ गया अतवार, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात, जुमा, ये 6ठा दिन आता है। जुमे का दिन जो हदीस में या मुख्तलिफ रवायत में, इस्लामिक रवायत में है कि जुमे के दिन आदम को बनाया गया, यानी 6ठे दिन। हम जुमा ना कहें, अगर हम वैसे ही कह दें तो इसका मतलब होता है कि 6ठा दिन। 7वां दिन हफ्ता है, हफ्ता सब्बत का दिन है, 7वां है, और ये हफ्तम या हफ्ता फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है 7वां, और जिसे हिब्रू में सब्बत कहते हैं, शब्बत कहते हैं। तो ये तो जुमा जो है वो 6ठा दिन है। जुमे का मतलब है जमा होना, इकट्ठे होना, जिस दिन खुदा ने तमाम जानवरों को, परिंदों को, चरिंदों को, दरिंदों को, सब को जमा करके आदम को उस पर इख्तियार दे दिया 6ठे दिन। तो वो जमा हो गए और आदम के सामने उन्होंने बैत की, माना कि हम आदम की बात मानेंगे, जो कुछ आदम कहेगा, किसको वो ज़बा करता है हम हो जाएंगे ज़बा, जिसको वो खेतों में हाल के तौर पे जोतेगा हम जोए जाएंगे, जिस तरह वो इस्तेमाल करना चाहता है, यहां तक कि बड़ी बड़ी मछलियां भी इंसान के कंट्रोल में हैं, शेर, सबसे हर एक जानवर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, समझ सकते हैं। तो वो सारे जमा हुए आदम के सामने, वो 6ठा दिन था। और फिर जब हम पैदाइश की किताब में देखते हैं तो ये पता चलता है कि जब वही आदम, वही जो खुदा की सूरत और शबीह पर था, जब उसके अंदर खुद गर्जी की रूह आ गई, घमंड की रूह आ गई,
अपने आप को बड़ा बनाने की रूह आ गई तो वो उसकी अकल काम करना छोड़ गई और खुदा ने उसको अदन से बाहर निकाल दिया। जब वो अदन से बाहर निकल गया है तो फिर उसके बाद उसको ये समझ नहीं आई कि वो क्या करे। ये एक बड़ा जख्म लगा है आदम को। बेशक आदम खुदा की बातों को सुनता था, लेकिन उसको एक जुदाई का जख्म लगा कि खुदा ने मुझे खुद से जुदा कर दिया है। दूसरा ये कि अब उसकी औलाद के अंदर मारकटाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। और फिर उसकी औलाद ने, जो एक वफादार था शख्स, हाबुल, उसको मार दिया कहन ने। अब कहन ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। कहन का तरीका क्या है कि वो यहोवा खुदा को सजदा करने की बजाय उसने 33 करोड़ जो हिंदुओं के देवता हैं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि पहला मजहब जो बना है वो यही था कि 33 करोड़ हर जिस चीज को देखा है खुदा के अगेंस्ट रखकर उसको अपना देवता बना लिया, उसको अपना खुदा मान लिया। यहोवा खुदा को नहीं माना, अगेंस्ट हो गया, घमंड आ गया, दिमाग खराब हो गया। और जब दिमाग खराब हो जाए तो दाऊद कहता है ज़बूर 49 में 49 ज़बूर 49वां और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जब खुदा की ताबेदारी बंदा छोड़ दे तो वो बेवकूफ हो जाता है। और जो बेवकूफी है वो हैवान के अंदर है। हैवान अक्लमंद नहीं होते। कभी देखा कि किसी हैवान ने कोई कार बनाई हो, कोई जहाज बनाया हो, कोई साइकिल बनाई हो, कोई घर बनाया हो, कोई झोंपड़ी बना के बैठा हो? ना ना ना, वो बस ऐसे ही फिरता रहता है। और ये नबूकतनजर का हाल हो गया ऐसा। जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब, उसका 5वां बाब, तो वहां पर लिखा है कि नबूकतनजर के अंदर जो घमंड आया, जो गुरूर आया, जो खुदा की मुखालफत में खड़ा हो गया और उसको पैगाम मिल गया कि तू नापा गया, तुम जो मिने मिने तफसीर पंजाबी में कहते हैं ना, मिनना, तो ये वही लफ्ज है, नापना। तू नापा गया और कम निकला। तो जब नापा जाता है इंसान और कम निकले तो वो दाऊद कहता है कि वो हैवान बन गया, हैवान खसलत हो गया। और फिर हम जो ज़बूर 49 उसकी 20वीं आयत में पढ़े तो वहां पर है कि इंसान जो अकल और खिर्द नहीं रखता वो जानवरों की मानद है। नबूकतनजर की अकल और खिर्द खत्म हो गया और वो जानवर बन गया, बैल बन गया, घास खाता था और उसके नाखून बढ़ गए और बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो फिर हैवान बन गया। बज़ाहिर वो इंसान नजर आता है, लेकिन बातन में अंदर वो हैवान है। उसकी खसलत, उसकी तबीयत, उसका स्वभाव जो है वो जानवरों की मानद हो गया, हैवान बन गया। यिर्मयाह की किताब उसका बाब 10वां और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, आदमी हैवान खसलत और बे इल्म हो गया। आदमी हैवान खसलत और बे इल्म हो गया। फिर यिर्मयाह की किताब उसका बाब 10वां और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, चरवाहे यानी खादम, मनाद, उस्ताद, आज के दौर के बिशप दुनिया की फिक्र में लग गए और वो हैवानी खसलत में आ गए, हैवान बन गए। हैं वो खुदा के लोग, हैं वो खुदा के मुकर्रर चुनिंदा लोग, चुने हुए, लेकिन दुनिया की फिक्र ने उनको हैवान बना दिया। वो भेड़ों को चराने वाले थे, वो भेड़ों को खाने वाले बन गए। और फिर है कि यिर्मयाह यही हवाला, यही बात, यही जिक्र 10 की, यिर्मयाह 10वें बाब की 8वीं आयत में भी यही जिक्र है। अब जो हम बार बार पढ़ते हैं कि जो ख्याल पाया जाता है इस बात का कि वो 666 का नंबर जो है वो कोई और मखलूक है, नहीं मेरे अजीजों, इस बात पर हमें बड़ा एहतियात बरतना चाहिए। हम दुनिया के ख्यालों में, कहानियों में, सोचों में ना बहक जाएं। यूहन्ना ये कहता है
यूहन्ना का खत अगर हम पढ़ें, दूसरा खत यूहन्ना का, उसका पहला बाब, उसकी 7वीं आयत, तो वहां पर लिखा है कि मुखालफे मसीह निकल आए हैं, निकल आया है। ये ना ख्याल करे कि आएगा, कब आएगा, वो एक हैवान होगा। अगर हैवान होगा तो कौन उसकी सुनेगा? कोई बैल अगर बोलना शुरू करे तो बैल की कोई सुनेगा? कोई शेर बोलना शुरू करे तो उसकी कोई सुनेगा? नहीं। वो इंसान जिसका दिमाग फिर गया, जो खुदा से मुनकर हो गया और उसने अपनी मनमानी शुरू की और उसने अपनी मोहर शुरू कर दी, वो मुखालफे मसीह है। वो जब 666 कहा जाता है तो ये 3-6 हैं। इसको 3 दफा कर लो या 1 कह लो, इसको इकट्ठा करो तो ये 3 को जमा करो तो 18 बन गए। 18 को 3 पे तकसीम कर दो तो ये 6 बन गए, जिसका मतलब है कि वो रूह जो खुदा ने आदम के अंदर भेजी, ये 3 जो है 3 रूह का अदद है। हम कोशिश करते हैं, हम क्या अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो मास्टर कमीशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अदाद भी सिखाते हैं और जो स्टोन्स हैं उनके बारे में भी, उनके कलर्स के बारे में भी स्टडी देते हैं। तो वो रूह है और वो रूह जो है वो उस 6 में आ गया, और जब 6 में आ गया तो अब वो रूह क्या काम कर रहा है? वो खुदा से हट गया और वो एक ऐसे ख्याल, ऐसी सोच में आ गया जैसे कि अबलीस के अंदर बहुत, मैं इस अबलीस के ताल्लुक से भी इन फ्यूचर हम एक वीडियो बनाएंगे और एक पैगाम सेट करेंगे, क्योंकि जो अज़ाज़ील है उसका नाम अबलीस है। अज़ाज़ील को अबलीस कहा जाता है और लूसीफर जो है वो कोई और नाम है। यह हम दूसरे टाइम में बात करेंगे। लेकिन जब अज़ाज़ील के अंदर घमंड आ गया था, वो खुदा का मुकर्रर फरिश्ता, खुदा का मुकर्रर फरिश्ता, खुदा का खास फरिश्ता, लेकिन जब घमंड आया तो वो अबलीस बन गया। अबलीस, अब्बा लफ्ज़ अब्रानी का है, तो जो झूठ का बाप है। मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। जब हम वो काम करते हैं जो हमारी शख्सियत के नहीं है या जिससे हम बिलोंग करते हैं, जिससे हम ताल्लुक रखते हैं, तो हम किसी और के दिखाई देते हैं। पतरस जो है, जब वो मसीह का शिगिर्द मसीह के साथ रहता है, कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो मसीह खुदावंद ने कहा कि ये तूने रूह से कहा है, इसलिए मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन दूसरे वक्त में वो क्या कहता है कि खुदा ना करे कि तुझ पर ऐसा वाक़े हो, तो मसीह ने कहा कि ऐ शैतान दूर हो, ऐ अबलीस दूर हो। वो अबलीस उसमें नजर आ रहा है, क्योंकि अबलीस नहीं चाहता था कि मसीह सलीब पर जाए। वही अबलीस, वही पुराना अजदहा जब किसी के अंदर आ जाता है तो वो हैवाने खसलत बन जाता है, क्योंकि उसके पास खुद भी अकल नहीं थी, बेअकली की, खुदा की बारगाह से निकल गया। अब फिर उसने बेअकली की कि आदम को वो वर्ग लगाया और आदम के अंदर भी बेअकली आ गई और उसने खुदा की ताबेदारी छोड़कर उसकी ताबेदारी की, अबलीस की, तो अदन से बाहर आ गया। अब इस दुनिया में वो जो हैवान नजर आ रहा है, जिसका मतलब वो इंसान जो है वो दुनिया में से ऊपर दिखाई दे रहा है। ये कोई जमीन से नहीं निकल रहा, ये दुनिया से निकलने का ये तशबीहाती पैगाम है। ये जो पैगाम मैंने बताया कि इल्मुल वाज में बहुत किस्म के पैगाम हैं, ये तशबीही पैगाम है। ये तशबीह दी गई कि वो निकला है, अब उसने अपने अंदर वो उसको मौका दिया कि पहले तो खुद वो हैवान बन गया, उससे खिरद खत्म हो गई, अपने खालिक को भूल गया। और ये जो मोहर चलने की बात है कि वो मोहर चलेगी, वो ये हो जाएगा, मेरे अजीजों ये मोहर तो बड़ी पुरानी शुरू हो गई। जब कोई बात इंसान ने अपने तौर पर शुरू की, नमरूद की भी मोहर है कि नमरूद कहता है कि मेरी बात मानो, जो मेरे साथ रहेगा वो खाए पिएगा, सब कुछ इजी रहेगा उसके लिए। फिर आप देखते हैं कैसर अगुस्तस के दौर में सब ने आके जो मर्दमशुमारी की, ये मोहर की बात ही है
मर्दम शुमारी, आपका नंबर लग जाना, आपका कार्ड बन जाना, आपका एक रजिस्टर में आ जाना, ये इंसान की बात है। वो इंसान जो खुदा के अगेंस्ट चल रहा है। अब उसके बाद जब मैंने वो कहा था इसको 3 को डबल करो, तो पहला एक इंसान है जो आदम है, उसका नंबर 6 है। छठे दिन वो बनाया गया, छठे दिन उसको इख्तियार मिला, छठे दिन सब चीजें उसके ताबे हो गई, छठे दिन वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। और फिर छठे दिन की बात यह कि उसी दिन में, अपने ही दिन में वो हैवानी बात में आ गया, हैवान बन गया। ये दूसरा 6 बन गया। और तीसरा 6 है कि वो फिर अपनी बात मनवा रहा है, इंसानी इख्तियार। तो ये एक ही इंसान है। और जब इसको आप दूसरे तरीके से आप देखो तो हम पालूस इसके बारे में कहता है, बड़े ख्याल से इस बात को ज़हन में रखे कि पालूस गलतियों के खत उसके पहले बाब की 7वीं आयत में कहता है कि बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बगाड़ना चाहते हैं। घबरा देते हैं, जो असली बात है वो नहीं बताते, बल्कि और तरफ खींच के ले जाते हैं। वो आएगा, वो ये होगा, वो होगा। यूहन्ना कहता है वो निकल चुका है, वो तुम्हारे दरमियान है। कोई शख्स भी जो खुदा की बात नहीं मानता। मैंने अभी आपके सामने यिर्मयाह की किताब उसके 10वें बाब की 20वीं आयत भी रखी है, जहां पर है कि चरवाहे जो हैं, खादम जो हैं, उस्ताद जो हैं, दुनिया की फिक्रों में लग कर वो हैवान बन गए हैं। अगर आज कोई आपको बिशप, पास्टर, मनाद, बड़े एवेंजलिस्ट, बड़े बड़े हीलर, बड़े मौजज़े करने वाले, अगर वो दुनिया की फिक्रों में लगे हैं, भले कोई भी हो, भले कोई भी हो। इसके बारे में वो गलतियों के खत में 5वें बाब की 10वीं आयत में कहता है। आप जो मैं हवाले देता हूं आप लिख सकते हैं, अपने तौर पे इसकी स्टडी कर सकते हैं। वो कहता है मुझे खुदावंद में तुम पर यह भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देते हैं वो खा कोई हो सजा पाएगा, कोई भी हो सजा पाएगा। जो घबरा देते हैं वो दुनिया के ख्यालों में लगे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये जो आप आयत को दोबारा से पढ़ लें तो साफ तौर पे आपके लिए आसान हो जाएगी कि वो लिखा है हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हवान का अदद गिन ले, हवान का अदद गिन ले। जो इंसान खुदा ने बनाया है वो हैवान बन गया है। दाऊद कहता है, यिर्मयाह कहता है, जिसमें वो अकल जो खुदा की ताबेदारी की अगर वो निकल गई तो वो हैवाने खसलत है। यिर्मयाह कहता है आदमी हैवाने खसलत और बेइल्म हो गया। ये यिर्मयाह 10:14 में लिखा है, आदमी हैवाने खसलत और बेइल्म हो गया। और फिर है ज़बूर 49 उसकी 20वीं में लिखा है, इंसान जो अकल और खिर्द नहीं रखता वो जानवरों की मानद हो गया। और यहां पे लिखा है जो पैदाइश, ये मकाशफा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी आयत है 18वीं, हिकमत का ये